The next we have is Rolle's theorem. Now it is a special case in LMVT where we say there is additional requirement. First is obviously fx is first requirement continuous if fx is continuous in closed interval a to b. Okay. Second requirement is if fx is differentiable in open interval a to b. And the third requirement is f of a should be equal to f of b. So third requirement is f of a should be equal to f of b, right? So that is important ना. So यहाँ पे then we'll say there should exist or there exists at least one value of c belonging to the same interval a to b where f dash c is equal to 0. So in the previous case it was fb minus fa upon b minus a, right? So we had fb minus fa upon b minus a in LMVT. Now obviously since b has become equal to a, f of b has become equal to a, f dash c is equal to 0 आ गया है, right? So it is just a special case of LMVT, we can say that, right? So again हम लोग ग्राफ से इसको देख लेते हैं. So what we are trying to tell here is if there is a function like this, continuous smooth differentiable function, then we have 2 points a, b, which are at the same level. The point here is a comma f of a. So a is the input, f of a is the output. The point here is b comma f of b. B is the input, f of b is the output. Then there should exist a point c where, again, see this point. This point is c, right? Where c lies between a and b, where the slope of tangent is equal to slope of chord. But this time slope of chord itself is 0. In fact, tangent and chord both will be parallel to x axis. Geometrically both will be parallel to x axis. That's why you're getting slope of chord as 0. See, they are at the same level, fb and f of a. The y coordinates will be same. Therefore you're getting fb minus fa as 0. The slope of chord will be 0. Therefore the slope of tangent will also be 0, and chord, tangent both will be parallel to x axis. That is what Rolle's theorem is, and what they have said is at least one point. तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है, right? So कैसे होगा वो उससे ज़्यादा points? It depends on the curve. If you have a curve like this, right, then you can say यहाँ पे एक point है A और वो same level पे है as B. Then there has to exist 1, 2 and 3 values in the interval A to B according to Rolle's theorem, and the values will be C1, C2, C3, where f dash c is 0.
So f dash c is 0. Okay, so that's how it is. Rolle's theorem is applicable, and if Rolle's theorem is applicable, what will happen is the derivative will be equal to 0. Okay, in LMVT the derivative was equal to the slope of tangent was equal to slope of chord. In this case, the slope of tangent, the chord, all will be parallel definitely, but they all will have slope equal to 0. मिनिमम एक पॉइंट होना चाहिए, ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं. मिनिमम एक पॉइंट होना चाहिए, ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं. ओके, सो Rolle's theorem is an extension of LMVT with one extra point we have here is f of a equal to f of b. Okay, so that is how it is done. Go ahead with the sums. Check the conditions of Rolle's theorem for the following functions. Condition of Rolle's theorem check करना है हम लोग को. So ये function जो है यहाँ पे is a polynomial function, ना? And we have done this while doing the chapter of functions. This also here is a polynomial function. Polynomial in that you can categorize this further as quadratic. And quadratic का graphs क्या होता है? We have done that during the regular classes of chapter functions. Okay, so we have quadratic polynomial, and the graph of this will be parabola. Parabolas continuous smooth differentiable रहता है ना. We can also plot it. For example, let us take this function and we can say इसको थोड़ा plot करते हैं. So I get here x square minus 2x plus 2 as x square minus 2x plus 1 plus 1, and then I see that it is x minus 1 the whole square plus 1. Okay, so what I get here is x minus 1 the whole square plus 1. हम लोग ने ऐसे ग्राफ्स पहले बहुत प्लॉट किए हैं while the regular classes were going. X minus 1 the whole square plus 1 would be parabola which is shifted to 1. अगर आप इनपुट 1 डालोगे तो आपको आउटपुट भी 1 मिलेगा. If you put input as 1, x is 1, you'll get y as 1. फिर यहां से पैराबोला ऊपर जाने वाला है. Right? This is what the graph looks like. ठीक है? Right now, I'm not plotting the graph for what we say anything else, but to understand from that कि polynomial functions होता है. In this case, it is quadratic parabola are continuous and differentiable. So इसका ग्राफ क्यूबिक का ग्राफ भी हम लोग बना सकते हैं. बनाएंगे नहीं अभी, बना सकते हैं. एंड यहाँ पे भी हम लोग वो बता सकते हैं कि फंक्शन विल बी कंटिन्यूस, फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल. एज हियर वी हैव फंक्शन एज कंटिन्यूस, फंक्शन एज डिफरेंशिएबल. सो पॉलिनोमियल का ग्राफ भी हम लोग बना सकते हैं इस पॉलिनोमियल का वैसे ही. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन द फंक्शन इज पॉलिनोमियल, आंख बंद करके हम लोग बोल सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल. Okay, function is continuous and differentiable in their respective domains. And also now we are going to check f of 0. So now we'll have to check the last condition, the third condition कि f of a क्या आ रहा है. So f of a आ रहा है 0 0 0 2 हो जाएगा, right? And f of 3/2 क्या आ रहा है. We'll have to check that too. So f of 3/2 हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 2 into 27/8
वी गोइंग टू क्यूब इट, -5 इंटू हम लोग को मिलने वाला है 9/4, ओके, +3 इंटू वी आर गोइंग टू गेट इट एज 3/2 +2. Yes, so +2, and then I get here after cancellation this is 4. 27 minus 45 है ये, okay, this after multiplication is 45, so 27 minus 45 we are going to get it as 45 minus 27 we are going to get it as 18, so ये -18 हो जाएगा, so -18/4 plus 9/2 plus 2, okay, -18/4 plus 9/2 plus 2. Now that -18/4 will become -9/2, so ये -9/2 plus 9/2 cancel हो गया, क्या आ गया, f of 3/2 as 2. so f of a, पॉइंट a जो लेवल पे है, जो हाइट पे है, वो 2 है, f of 3/2 is also 2, so f of a is equal to f of b, and hence we can say continuous है, differentiable है, f of a equal to f of b tells us that Rolle's theorem is applicable. Okay, so we can say in this that the Rolle's theorem is applicable. The conditions are such that the Rolle's theorem will be applicable. Okay, so we are going to do that only in the next problem 2. और कुछ नहीं करना है हम लोग को, यहाँ पे Rolle's theorem वेरीफाई नहीं करना है, खाली चेक करना है applicability of Rolle's theorem, क्या हम लोग Rolle's theorem अप्लाई कर सकते हैं, that is only we have to check, that much only we have to check. So again the next is also a polynomial function, quadratic function, उसका तो ग्राफ भी हम लोग ने बना दिया है, बहुत सिंपल है, अभी खाली हम लोग को एक ही कंडीशन चेक करना है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल तो है ही, चेक करना है कि f of a क्या आता है. So what we are going to get, f of a, is f of a equal to f of b, so f of 1 इसमें डालो या इसमें डालो, ये भी वही है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सॉरी यहाँ पे है x² minus 2x plus 3, so ये +2 हो जाएगा, ये भी +2 हो जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, only that point will change, the point from where the parabola is starting will change, and it will be 1,2. Okay, sorry, my mistake, we have here x² minus 2x plus 3, so it becomes +1 plus 2, so we are going to start from y coordinate as 2, only that's the change, otherwise the graph will look same only, it is still continuous and differentiable. So now what we are going to check is whether Rolle's is applicable or not. So LMVT applicable है यहाँ पे, let me remind you, LMVT applicable है because it is continuous and differentiable. अब Rolle's applicable है कि नहीं है वो चेक करना है, Rolle's theorem applicable है कि नहीं है वो चेक करना है. So उसके लिए f of a लेना पड़ेगा, f of a मतलब आपको 1 डालना पड़ेगा, यहाँ पे 1 डालोगे तो वैल्यू आएगा 2, so f of 1 will be 2. फिर f of 4 लेना पड़ेगा, so f of 4, f of b, so what you are going to get is 16 minus 8 plus 3. 16 minus 8 plus 3 is we are going to get 8 plus 3 11. So since f of 1 is not equal to f of 4, we say Rolle's is not applicable. So in this I am going to say Rolle's theorem not applicable. Okay, that is what we come to the conclusion after seeing f of 1 not equal to f of 4. Rolle's theorem is not applicable. So that is what the idea is. Okay, so Rolle's theorem applicable नहीं है. Rolle's theorem कब applicable होता है? When the function is continuous and differentiable. 1, when f of a is equal to f of b. Okay, so आगे देखते हैं, आगे समझाएंगे on verifying the Rolle's theorem. Like we verified
LMVT, we are going to verify Rolle's theorem also. Okay, so let us start again. पहले applicability discuss करना होगा. So I'll say since fx is quadratic function, okay, it is continuous and differentiable. So since fx is quadratic function, it is continuous and differentiable. Now f of 0 is going to be 0, 0, 10. So we get f of 0 is 10, and f of 4 is, after substitution, you will say it is 16 minus 4 into 4 again 16. So you're going to get 16 minus 16 plus 10. So f of 4 भी हमको मिल रहा है 10. So since f of a is equal to f of b, quadratic function था, parabola बनेगा, continuous and differentiable तो है ही. उसके बाद f of 0 is 10 मिल रहा है, f of 4 भी 10 मिल रहा है. Therefore Rolle's theorem is applicable. Rolle's theorem is applicable, and according to theorem, I would say there exists, according to theorem, there exists at least one value of c belonging to the interval 0 to 4 where f dash c is 0. So that's it. According to Rolle's theorem, there has to be a value where f dash c is 0. Okay, and that value has to be between 0 and 4. So Rolle's theorem applicable है, and according to theorem there exists at least one value in the interval 0 to 4 where f dash c is 0. Okay, तो Rolle's के हिसाब से एक value है. What we are going to do is we are going to verify it. So verification. Let us solve that equation. Verification. हम लोग चेक करेंगे, एक्चुअली में फाइंड करके बताएंगे कि हाँ c वैल्यू जो है वो 0 to 4 के बीच में है. सो वेरिफिकेशन, f dash c is 0, सो हम लोग को मिलेगा 2x minus 4, and you're going to put the value of x as c, that is equal to 0. सो हम लोग को मिलेगा 2c equal to 4, c is 2, yes 2 belongs to 0 to 4, therefore verified. Okay, so फाइंड करना नहीं होता है वैल्यू, बराबर ना. उन्होंने वेरीफाई बोला इसलिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं. सो fx इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल दी वैल्यूज, फॉर ऑल दी रियल नंबर्स. फिर हम लोगों ने चेक किया f of 0 10 आ रहा है, फिर f of 4 भी 10 आ रहा है, तो हमको पता चला f of a इक्वल टू f of b है. रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, और अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू of c in the interval 0 to 4 where f dash c is 0. Confirm. ऐसा थियरम ने बोला है कि एक वैल्यू होना ही चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई कैसे करेंगे, एक्चुअली में वैल्यू फाइंड करके देखेंगे. सो वैल्यू फाइंड करके हम लोग देख रहे हैं, डेरिवेटिव लिया, हम लोग ने वैल्यू फाइंड किया, c का वैल्यू आया 2 बिलोंग्स टू द इंटरवल, एंड हेंस वी कैन से इट इज वेरीफाइड. रोल्स थियरम इज वेरीफाइड. ओके, go ahead. Next we have verify the Rolle's theorem for this function. Okay, in this sin x अगर आप देखोगे, sin x smooth curve, continuous and differentiable. Cos x continuous and differentiable. Okay, e raised to x सबका ग्राफ आपको मालूम है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल.
सो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नया फंक्शन जो बनेगा वो भी बनेगा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, और उसको फिर वापस कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे. इन शॉर्ट आपको यहाँ पे जितने भी फंक्शन जो यूज किए हम लोग ने fx बनाने के लिए वो सब कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है. सो कोई टेंशन नहीं है. यू कैन स्ट्रेट अवे राइट दैट देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल. ओके. अच्छा, अभी LMVT एप्लीकेबल है, रोल्स एप्लीकेबल है कि नहीं ये चेक करना है. सो नाउ f of pi by 4 will give you e raised to pi by 4 sin pi by 4 1 by root 2 minus 1 by root 2 cos pi by 4 भी वही होगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा. अच्छा, अगर किसी ने आपको पूछा f of 5 pi by 4 क्या है, सो f of 5 pi by 4 will be e raised to 5 pi by 4. Now 5 pi by 4 if you see it is going to be pi plus pi by 4. पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया. थर्ड क्वाड्रेंट में आपको दोनों साइन एक्स एंड कॉस एक्स नेगेटिव मिलेगा. सो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको दोनों नेगेटिव मिलेगा, इसलिए ये हो जाता है -1 बाय रूट 2 और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो +1 बाय रूट 2. सो अगेन यू आर गोइंग टू गेट दोनों नेगेटिव मिलेगा, साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, इसका -1 बाय रूट 2 इसका भी -1 बाय रूट 2. सो -1 बाय रूट 2 माइनस ऑफ -1 बाय रूट 2 विल गिव यू +1 बाय रूट 2, दैट विल मेक इट 0. एंड देयरफॉर रोल्स थ्योरम is also applicable. So Rolle's theorem is applicable. Okay. Now Rolle's theorem applicable है तो अभी हम लोग वेरीफाई करेंगे. So let us verify. Verification. ना अब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो उसका स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूं बार बार, आपको मालूम ही है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू वेयर डेरिवेटिव इज 0. सो वेरिफिकेशन में हम लोग उसी को इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे और बोलेंगे हाँ वो वैल्यू इंटरवल में है. सो वेरिफिकेशन f' 0 लेना है, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव यूवी रूल से आएगा. सो e रेज टू x इनटू डेरिवेटिव ऑफ पहले आएगा sin x माइनस cos x विच विल बिकम cos x प्लस sin x. ओके, प्लस अभी हम लोग इसको लेंगे sin x माइनस cos x एज इट इज कॉपी करना है एंड इनटू आएगा डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x एस e रेज टू x एंड वी आर गोइंग टू पुट x एस c. दिस इज इक्वल टू 0. सो e रेज टू c विल बी कॉमन. यहां पे आएगा cos x और माइनस cos x कैंसिल हो जाएगा. ओके, sin x प्लस sin x, what are you going to get is 2 sin x. So 2 sin c is 0. ओके, sin c 0 कब होगा? when c is n pi. Any integral multiple of pi you can take, वहां पे आपको sin का वैल्यू 0 मिलेगा. बट अपने इंटरवल के हिसाब से हम लोग को रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई करना है और उसके हिसाब से एक वैल्यू अपने इंटरवल में भी आना चाहिए. सो e रेज टू c कभी 0 नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी हम लोग को 0 नहीं देगा. सो बचा क्या? sin c इज 0. अब sin c कहां पे 0 है? बहुत सारे वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ n pi. सो आई वुड से e रेज टू c cannot be equal to 0. sin c is 0. Let c be equal to pi. 0 भी चलेगा, पाई भी चलेगा, 2 पाई भी चलेगा, 3 पाई भी चलेगा, any multiple of pi चलेगा. But right now I am focusing on pi because that lies in our interval pi by 4 to 5 pi by 4. So according to Rolle's theorem, there should be one value. Yes, there is a value. There is a value pi. There are a lot of values where sin c is 0. But according to Rolle's theorem, इंटरवल में भी एक वैल्यू होना चाहिए और वो इंटरवल में वैल्यू अपना है pi. So hence we can say Rolle's theorem is
verified. So very straightforward topic is this. They have said Rolle's theorem को verify करना है. Verify Rolle's theorem. तो पहले हम लोग बताते हैं Rolle's theorem applicable है. अब Rolle's theorem अगर applicable है तो हम लोग Rolle's theorem अगर applicable है तो हम लोग को एक पॉइंट मिलना चाहिए C, जहां पे डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0. और वो C कहां पे होना चाहिए? इसी इंटरवल में होना चाहिए. तो हम लोग ने वो C का वैल्यू फाइंड किया और आया, हमको उसी इंटरवल में वैल्यू आया. द वैल्यू इज पाई. हेंस Rolle's theorem is verified. Okay, so we move on to the next question. Now in this type of question, see the question properly. We are not, it is little different from those typical questions where we have to just verify the theorems. यहाँ पे वैसा नहीं करना है. यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली थ्योरम यूज करना है. देखो कैसे. दे आर सेइंग दिस इज द फंक्शन. ओके, अब ये फंक्शन है, हम लोग को प्रूव करना है कि ये इक्वेशन का विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन एक रूट 1,2 इंटरवल में लाई करता है. आई रिपीट द क्वेश्चन. फंक्शन ये दिया हुआ है, हम लोग को प्रूव करना है कि इक्वेशन x log x इक्वल टू माइनस एक्स, उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है. विदाउट सॉल्विंग दैट इक्वेशन वी हैव टू प्रूव दैट देयर इज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 1,2. ओके, सो यहां पे हम लोग को ये जो हम लोग के यूजुअल सम्स थे वेयर वी हैड टू find out whether LMIT is applicable or not, where we had to find out whether Rolle's theorem is applicable or not, उसके ऊपर बेस्ड नहीं है अभी. अब ये application of theorem के ऊपर बेस्ड है. So without solving the equation you have to prove that there is one root, at least one root, you don't have to find the value, lying in this interval. Okay, so see how do we go about this question again. So अपने पास फर्स्ट फंक्शन क्या है? What is the first function? X minus 2. Now if you see the graph of x minus 2, it is going to be this. Passing through 0, minus 2, it is a straight line, 45 degrees inclination, y equal to x minus 2. Okay, next is we have log x. अब log x का ग्राफ भी अगर आप देखोगे तो यस, उसका डोमेन जो है वो 0 टू इंफिनिटी है. तो इस फंक्शन का भी डोमेन 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा. नेगेटिव वैल्यूज के लिए x माइनस 2 डिफाइंड है, लेकिन log x नहीं. ओके, बट माय पॉइंट इज 1 और 2 के बीच में तो ये log x भी कंटिन्यूस है. सो x माइनस 2 कंटिन्यूस है, बिटवीन 1 एंड 2 log x भी कंटिन्यूस है. x माइनस 2 डिफरेंशिएबल है, log x भी डिफरेंशिएबल है. सो वी कैन से दैट सिंस x minus 2 and log x are continuous and differentiable functions in interval, in given interval, we write that therefore fx equal to x minus 2 into log x is also continuous and differentiable. Okay, so fx is equals to x minus 2 log x is also continuous and differentiable. ठीक है? So then next what we do is we say now f of 1 is equal to minus 1 into log 1, which is 0, equal to 0. F of 2 is 0 into log 2 is 0, right?
Therefore, Rolle's theorem applicable. Therefore, Rolle's theorem applicable. And according to Rolle's theorem, there should exist at least one value of C belonging to the interval 1 to 2 where f dash C is 0. Right? So according to Rolle's theorem, there has to be at least one value of C where f dash C is 0 in this interval. So therefore, now see this, Rolle's theorem applicable है. अब रोल्स थ्योरम के हिसाब से एफ डैश सी 0 है. अब तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग सी फाइंड करते थे और वेरीफाई करते थे क्वेश्चन को. यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं करना है आपको, सी का वैल्यू फाइंड नहीं करना है. रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, डेरिवेटिव 0 होना ही चाहिए एक पॉइंट पे. तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, वो पॉइंट फाइंड करते थे. यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग है. सो करना क्या है, सो यहाँ पे यू हैव टू प्रूव दैट देयर इज वन रूट इन दिस इंटरवल. सो एफ डैश सी इज 0 जरा हम लोग सॉल्व करेंगे ना. ये रहा, यहाँ पे हमारा फंक्शन है x माइनस 2 log x. सो उसमें आएगा x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू x माइनस 2 द डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 1. यूवी रूल अप्लाई करेंगे एंड इसमें हम लोग एक्सेस सी पुट करेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा. So ultimately what I'm going to get is, when I multiply this here, I get c minus 2 plus x log x. तो ये हो जाएगा c log c equal to 0 and therefore c log c is equal to 2 minus c for at least one value in interval 1 to 2, right? So therefore, can I say therefore x equal to c belonging to the interval 1 to 2 is a root because it satisfies the equation of equation x log x equal to 2 minus x, right? So हो गया. Now we have proved that there is one value in the interval 1 to 2 which satisfies this equation, right? यहाँ पे हम लोग ने बताया c is that value, उसका वैल्यू जो है 1,2 इंटरवल से आएगा और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. आई रिपीट, क्वेश्चन जरा वापस एक बार देख लेते हैं. क्वेश्चन सेज x माइनस 2 log x फंक्शन है, मैंने बताया उसको, उसमें रोल्स थियरम एप्लीकेबल है. अब रोल्स थियरम एप्लीकेबल है तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थियरम देयर हैज टू बी अ वैल्यू इन दिस इंटरवल वेयर डेरिवेटिव इज 0. डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लिया हम लोग ने और हम लोग यहाँ पे पहुंचे, दैट कंक्लूजन पे पहुंचे कि c log c is equal to 2 minus c. So c satisfies this equation. Which equation? x log x equal to 2 minus x. वही equation जो क्वेश्चन में दिया था, x log x equal to 2 minus x. कौन सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को? c सेटिस्फाई करता है. x log x equal to 2 minus x को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? c सेटिस्फाई कर रहा है. f dash equal to c, f dash c equal to 0 लिया हम लोग ने.
आई रिपीट एफ डैश सी इक्वल टू 0 लिया तो पता चला सी सेटिस्फाई कर रहा है. किसको सेटिस्फाई कर रहा है? सी लॉग सी इक्वल टू 2 माइनस सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सी सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को. और सी कौन से इंटरवल में लाई करता है? इंटरवल 1 to 2. सी कौन से इंटरवल में लाई करता है? इंटरवल 1 to 2. Therefore, x log x equal to 2 minus x has at least one root in the interval 1 to 2. Hence, proved. Okay? So, यहाँ पे आपको रोल्स थियरम के हिसाब से डेरिवेटिव एट c 0 मिलना चाहिए. बट c कहाँ पे लाई करता है? 1,2 में. सो c log c इक्वल टू 2 माइनस c मिलना चाहिए. c कहाँ पे लाई करता है? इंटरवल 1 to 2 में. सो x इक्वल टू c lying in the interval 1 to 2 is actually a root of this equation. Without solving, I know that कि एक रूट इसका 1,2 इंटरवल में लाई करता है इस इक्वेशन का. ठीक है. So that is what the sum was about. Two more sums I'm going to do on this same concept. Let us go ahead. Question says, if 2a plus 3b plus 6c is 0, then prove that there is at least one root of this equation in the interval 0 to 1. Okay? So, हम लोग को basically previous sum से कुछ सीखना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है वो डेरिवेटिव लेने के बाद आएगा. प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग को ये जो इक्वेशन था, जो हमको जहां पे हम लोग को प्रूव करना था कि दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट, वो डेरिवेटिव लेने के बाद आया था. राइट हियर डेरिवेटिव लेने के बाद आया था. वो यहां पे हम लोग ने डेरिवेटिव लिया था और फिर वो इक्वेशन आया था. और फंक्शन हम लोग को उन्होंने ही दिया था. सो दिस इक्वेशन हैज अ रूट इन 1 to 2. दिस इक्वेशन हैड कम आफ्टर टेकिंग द डेरिवेटिव. नाउ अगेन दे आर आस्किंग अस टू प्रूव दैट कि ये जो फंक्शन है, ये जो इक्वेशन है, उसका एक रूट जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है. और इस बार उन्होंने फंक्शन नहीं दिया हुआ है. इस बार उन्होंने फंक्शन नहीं दिया हुआ लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन. खाली इक्वेशन दिया हुआ. बोला इक्वेशन का एक रूट जो है वो 0,1 में लाई करेगा. ऐसा प्रूव करके बताओ. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी टेक अ फंक्शन विच इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन. मतलब या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एक फंक्शन लेंगे जिसको डिफरेंशिएट करने पर ax² प्लस bx प्लस c आएगा. सो लेट दैट फंक्शन बी कैपिटल fx and let that be equal to a x cube by 3. So जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3x² आएगा. 3 कट x² बन जाएगा. ओके. सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, एवरीबडी मस्ट हैव डन दिस. इट इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c आता है. बराबर है. तो सिंपल वो फॉर्मूला से मैं सोच रहा हूं कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ by 3 आएगा. बाद में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये वापस आ जाएगा ax². bx का इंटीग्रेशन करेंगे और फंक्शन बनाएंगे bx²/2, क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वापस bx आने वाला है. cx का डेरिवेटिव लेंगे तो c आएगा. सो हम लोग ये जो फंक्शन बना रहे हैं उसको इसके इंटीग्रेशन के बना सकते हैं, बिकॉज इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वापस ये इक्वेशन मिलना चाहिए. सो fx इज ax³ by 3 प्लस bx² by 2 प्लस cx. नाउ ये हम लोग का फंक्शन है. सिंस द अज्यूम्ड फंक्शन इज पॉलिनोमियल, therefore it is continuous and differentiable. Since the assumed function is polynomial, therefore it is continuous and differentiable.
ओके, नाउ अभी एलएमवीटी तो एप्लीकेबल है, रोल्स एप्लीकेबल है कि नहीं है हमको चेक करना है. सो रोल्स एप्लीकेबल है कि नहीं है उसके लिए हम लोग को एफ ऑफ जीरो लेना पड़ेगा. एफ ऑफ जीरो यू आर गोइंग टू गेट इट एज जीरो. फिर हम लोग एफ ऑफ वन लेंगे. सो एफ ऑफ वन लेंगे तो क्या आएगा, ए बाई थ्री प्लस बी बाई टू प्लस सी. सो इफ आई टेक दिस एज एलसीएम मुझे मिलेगा 2a प्लस 3b प्लस 6c बाई 6 एंड 2a प्लस 3b प्लस 6c इज गिवन एज 0. सो एफ ऑफ वन भी हो गया 0. So assume function is a polynomial function, it is continuous and differentiable. Also when I check, I will take this as capital F. So when I check f of 0, when I check f of 1, obviously इसको ही मैं interval बना देता हूँ, f of a, f of b. तो f of 1 के टाइम पे I take LCM and I see that f of 1 is 0. Therefore Rolle's is applicable. ठीक है, Rolle's applicable, Rolle's theorem is applicable. Now according to Rolle's theorem क्या होना चाहिए, that implies f dash c is equal to 0 for c belonging to, not for all values of c belonging to this interval, but at least one value. For we say at least one value of c belonging to the interval 0 to 1, f dash c must be 0, right? Okay, let us go ahead. जानबूझ के हम लोग ने फंक्शन ऐसा सिलेक्ट किया ही था, हमको मालूम है डेरिवेटिव लेने के बाद यही इक्वेशन आएगा वापस, वो हम लोग को मालूम है. सो डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ले लेंगे इस फंक्शन का, तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू गेट इट एज ax square, okay, 3x square upon 3, then we have 2x upon 2, that is bx plus c, right, is equal to 0, right, for at least one value in the interval 0 to 1. Right, so that is what we have from Rolle's theorem. Whenever Rolle's theorem is applicable, its derivative, the function derivative will be equal to 0 in that interval. So वही हम लोग को पता चला यहाँ पे कि अभी ये फंक्शन को देख के Rolle's theorem applicable है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अच्छा, इसमें Rolle's theorem कौन से इंटरवल में एप्लीकेबल है, 0 to 1, तो इसका डेरिवेटिव दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c will be 0 for at least one value in the same interval. Okay, hence we have proved that there is going to be one root of this equation in the interval. Okay, so क्या किया हम लोग ने, हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है उसका एक रूट 0,1 इंटरवल में लाई करता है. तो हम लोग ने एक फंक्शन क्रिएट किया और बताया उस फंक्शन में रोल्स एप्लीकेबल है, विद दिस कंडीशन रोल्स एप्लीकेबल है, और अगर रोल्स एप्लीकेबल है तो उसका डेरिवेटिव होगा इक्वल टू 0. डेरिवेटिव आता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू इन दिस इंटरवल. सो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करने वाला एक वैल्यू इस इंटरवल में ही है, एक रूट उस इंटरवल में ही है. ओके, ना इसका हम लोग ने प्रूव तो कर दिया, बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग इज ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग, अंडरस्टैंड करते थोड़ा. सो यहां पे मैं काम करता हूं, a इक्वल टू 3 लेता हूं, b इक्वल टू -2 लेता हूं, c इक्वल टू 0 लेता हूं. चेक, 2 into 3 6, 3 into -2 is -6, 6 minus 6 is 0, और c डालेंगे 0 तो हो गया ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 2a प्लस 3b प्लस 6c 0 हो जाएगा, चेक कर लो. ओके, फिर हम लोग
इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस मतलब प्लस बी एक्स मतलब माइनस 2x आ जाएगा, और c का वैल्यू तो 0 है, इज इक्वल टू 0। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या पता चलता है, इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या पता चलता है, आपको मिलता है एक्सेस 0 और दूसरा आपको मिलता है एक्सेस 2/3। एक्सेस 2/3 बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 1। ये हमने प्रूव किया। They have said अगर आप coefficients of this equation, that is quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, जो अपना quadratic equation है उसके coefficients अगर आप 2a plus 3b plus 6c equal to 0 कंडीशन के हिसाब से लेते हो तो एक रूट तो 0,1 इंटरवल में आएगा। That is what they had asked us to prove, and that is what we proved by Rolle's theorem. Now I'm just letting you know by putting in the values, what you have just done is you have proved that if coefficients are selected by this relation, then there is certainty that there will be one root of this equation in the interval 0 to 1 आना ही है। ये हम लोग नंबर्स डाल के देख रहे हैं, बट अपन ने प्रूव किया इसको बाय रोल्स थियरम। कंडीशन क्या था रोल्स थियरम में, हम लोग ने क्या किया, इसको अज्यूम किया डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव आना चाहिए तो उसके हिसाब से फंक्शन सिलेक्ट किया। आप हिंट ये है कि आप इसको इंटीग्रेट करके भी फंक्शन ला सकते हो, फिर आपको मिलेगा f of 0 एज 0, f of 1 तो कंडीशन के हिसाब से 0 हो जाएगा, रोल्स इज एप्लीकेबल, डेरिवेटिव मस्ट बी 0, डेरिवेटिव लेने पर ये ही आना चाहिए, क्वाड्रेटिक ही आना चाहिए, देयरफॉर क्वाड्रेटिक मस्ट बी 0 फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू इन 0 to 1। ये हमने प्रूव किया यूजिंग रोल्स थियरम। बट इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि अगर आप a का वैल्यू सिलेक्ट करते हो, लेट अस नाउ सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ a एज से 3, b का वैल्यू 0 डाल देते हैं, c का वैल्यू -1 डाल देते हैं। सो वापस तुम्हारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, 2a plus 3b plus 6c is 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है then you should have at least one root of this equation in 0 to 1। ये आपको प्रूव करके बताना है, तो वो हम लोग ने ऑलरेडी रोल्स थ्योरम से बता दिया। इस बार खाली हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आता है वो। सो वी गेट 3x स्क्वायर, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू -1 है, इक्वल टू 0। इसको भी आप सॉल्व करोगे, आपको दो रूट मिलेगा, एक मिलेगा -1/√3 जो ऑब्वियसली इंटरवल के बाहर है, बट एटलीस्ट वन रूट बोला हुआ है, तो एक रूट तो आने ही वाला है बिटवीन 0 to 1 इंटरवल। दो भी आ सकते हैं बट मिनिमम एक तो आने ही वाला है। इफ दिस कंडीशन of 2a plus 3b plus 6c equal to 0 is satisfied, then the quadratic will definitely have one root in the interval 0 to 1। मैंने वैल्यूज डाल के भी बताया आपको कि ये होने वाला है। अब ऐसे हम लोग कितने वैल्यूज डालेंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस है, इनफाइनाइट इक्वेशंस है, तो सब तो नहीं बना सकते, तो सब बनाने का जरूरत नहीं है, रोल्स थ्योरम से आप उसको प्रूव कर सकते हो। आई रिपीट द प्रोसीजर। हम लोग ने फंक्शन लिया ax³/3 + bx² 2 + cx। क्यों ऐसा फंक्शन लिया, बिकॉज उसका डेरिवेटिव लेने पर क्वाड्रेटिक आता है। अब प्रूव कैसे करेंगे कि क्वाड्रेटिक का एक रूट 0,1 इंटरवल में लाई करेगा। सो fx इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, और यही इंटरवल हम लोग लेंगे, a को 0 डालेंगे f of a 0 आएगा, b को 1 डालेंगे f of b भी 0 आएगा। रोल्स इज एप्लीकेबल, और अगर रोल्स एप्लीकेबल है तो डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, डेरिवेटिव 0 हो जाता है इन दैट इंटरवल, अपना क्वाड्रेटिक इन दैट इंटरवल 0 रहेगा। सो क्वाड्रेटिक हैज वन रूट इन 0 to 1। ओके, सो जो इक्वेशन जिसका हम लोग को रूट प्रूव करना है कि ये इंटरवल में, आपने प्रीवियस क्वेश्चन भी देखा रहेगा, तो इक्वेशन जिसका हम लोग को रूट प्रूव करना है कि ये पर्टिकुलर इंटरवल में इसका रूट रहेगा, तो उसी के ऊपर वाला फंक्शन, इंटीग्रेशन वाला फंक्शन बनाना है तुमको, सच दैट दिस इक्वेशन कम्स एज डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 इन 0 to 1 हो जाएगा, फिर हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो रोल्स इसके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव अपना इक्वेशन होना चाहिए। रोल्स फंक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव हमारा इक्वेशन
बनना चाहिए. So that is what the idea is. That is how we can use Rolle's theorem to find out, to locate the roots of the certain equations. Okay, that's it. So this is what we have in the application of Lagrange's mean value theorem and Rolle's theorem. Next lecture will be covering the application, increasing decreasing functions, and post that we are going to cover maxima and minima. Okay.